हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? नाउ इन नेक्स्ट today we will do the exercise 13.5, and this exercise is specially based on the volume of a cuboid and cube. In last video we discussed what is the cuboid. A cuboid is a solid geometry which has six surfaces, and each surface is in the form of a rectangular. So if we have a cuboid, let us suppose example, this is the cuboid. Let us suppose this is one cuboid which has length is equals to L, its breadth is equals to B, and height is, let us suppose, H. In its unit may be in centimeter, meter, and kilometer. So let us suppose L be the length of a cuboid, B be the breadth of a cuboid, and H be the height of a cuboid. So in cuboid, length is equals to L unit, breadth is equals to B unit, and height is equals to H unit. Then the volume of a cuboid is equals to length into breadth into height unit cube. Unit cube means, let us suppose if length is also in centimeter, breadth is also in centimeter, and height is also in centimeter, then centimeter into centimeter into centimeter, it will be unit cube. So we will write here unit as centimeter cube. अगर unit meter में है, then it will be meter cube. So the volume of a cuboid is nothing but simply length into breadth into height, unit cube. So the most important thing, whenever we have given any cuboid, then first of all what we have to check? We have to check that what is the LBH of given cuboid, that is what is length, what is breadth, and what is height. Then second step, we have to check whether they have in same unit or not. Let us suppose sometime length is in centimeter, breadth is in also centimeter, and height is in meter. Then first of all we will convert all the unit in centimeter, or we will convert all the unit in meter. Sometimes if two dimensions are in centimeter, one is meter, then we will convert the dimension that is in meter into centimeter. Sometimes if two units are in the dimensions are in meter and one is in the centimeter, then we will try to convert all three dimensions into meter. So here dimensions means a solid geometry which has length, breadth, and height. Then such geometrical figure is known as three-dimensional. In short form, we write it as 3D. 3D means three-dimensional. Similarly, if we have given a cube means a solid geometrical figure in which length is equals to breadth is equals to height. एक ऐसा geometrical solid figure है जिसका length, breadth और height अगर तीनों equal है, then such geometrical figure is known as cube. So second formula here, volume of a cube will be equals to length cube. Length cube means all three dimensions are equals to length, or B is also L, H is also L, that means
L cube. Sometimes it is written as B cube, means breadth is equals to length and height, and sometimes we write it as H cube, means LB is equals to H. And in general, always we write side cube. Whatever the side of a solid geometrical figure which is three sides are equal, that is length, breadth and height are equal, then generally we consider that the side of cube is S, because cube is automatically understood as a solid geometrical figure which is all three dimensions are equal, that is length equals to breadth is equals to height. Therefore, that dimension is known as side. So the volume of cube will be equals to side cube unit cube. So these two formula, and on the basis of these two formula we will discuss the next exercise 13.5. So let us see question number first. So the first question is a match box measures 4 centimeter into 2.5 centimeter. That is length is 4 centimeter, breadth is 2.5 centimeter, and height is 1.5 centimeter. So first of all, question में भी क्या दे रखा है कि all three dimensions are given and the unit of dimensions is in centimeter. Then what will be the volume? What will be the volume of a packet containing 12 such boxes? Means हमें क्या दे रखा है, एक मैच बॉक्स है जो अपन घर में माचिस की जो डिब्बी जिसको सिंपल भाषा में बोलते हैं अपन यूज लेते हैं, एक कोई मैच बॉक्स है, उसका डायमेंशंस की मैच बॉक्स किसका एग्जांपल है, क्यूबॉइड का, उसकी एल ये है, बी ये है, हाइट ये है। तब अगर उस बॉक्स में ऐसे 12 मैच बॉक्स हैं तब उन सबका वॉल्यूम क्या होगा। सो वेरी सिंपल, कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकालेंगे और एक मैच बॉक्स का जो वॉल्यूम है उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि जो एक ऐसा बॉक्स जिसमें 12 मैच बॉक्स है उसका कंप्लीट वॉल्यूम आ जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट हाउ वी विल सॉल्व दिस। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन के सबसे पहले क्या करेंगे, देखो क्या है, गिवन दैट, क्या दे रखा आपने को, गिवन दैट length of matchbox is equal to 4 centimeter। लेंथ के बाद में breadth of matchbox कितना दे रखा आपको, 2.5 centimeter, and then height of matchbox is equals to कितना दे रखा है, 1.5 centimeter। So volume of one matchbox will be equals to length into breadth into height unit cube। Here so volume of one matchbox किसके बराबर हो जाएगा, लेंथ कितना दे रखा है, 4 into 2.5 into 1.5 centimeter cube। Here why we write centimeter cube, because length is also centimeter, breadth is also centimeter, and height is also in centimeter। So आप देखिए 4 को अगर मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो it will be equals to 10 into 1.5 centimeter cube, so it will be equals to 15 centimeter cube। So what is the volume of one matchbox, 15 centimeter cube। So the volume of 12 match boxes will be equals to, एक का वॉल्यूम कितना है, 15 सेंटीमीटर क्यूब, तो 15 into 10 centimeter cube, that is 150 centimeter cube। This is the
टोटल वॉल्यूम। सो अब क्वेश्चन इज क्लियर, फिर से मैं बता देता हूं क्या करना है। एक मैच बॉक्स का आपको वॉल्यूम निकालना है और क्वेश्चन क्या कह रहा है, what will be the volume of a packet containing, जिसमें क्या है, एक पैकेट है जिसमें इस डायमेंशंस के मैच बॉक्सेज है, उनकी क्वांटिटी कितनी दे रखी है, 12। तो जो पैकेट है जो 12 मैच बॉक्सेज को कंटेन कर रहा है उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ऑल 12 मैच बॉक्सेस। तो हमने एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकाला और उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, a cuboidal water tank is 6 meter long। एक cuboidal water tank है जिसका लेंथ 6 मीटर है, ब्रेथ 5 मीटर है एंड हाइट इज 4.5 मीटर डीप। How many liters of water can it hold? Where what is given, 1 meter cube is equals to 1000 liter. This is the very important unit. तो अब देखिए यहां से आपको क्या हिंट मिल रहा है कि अगर क्यूबॉइडल टैंक की जो डायमेंशंस है वो अगर मीटर में है, देन 1 मीटर क्यूब इसके इक्वल कंसीडर करेंगे अपन 1000 लीटर के। दूसरा क्वेश्चन ये भी हिंट कर रहा है, ये क्वेश्चन अगर आपका डायमेंशन सेंटीमीटर में LBH, तो सबसे पहले हमें उनको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। सो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। देखिए सॉल्यूशन में क्या है, सबसे पहले हियर गिवन दैट, क्या गिवन है बेटे आपको, गिवन दैट हमें गिवन है, देखो लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल वाटर टैंक, जो क्यूबॉइडल वाटर टैंक है उसकी लेंथ कितनी है, 6 मीटर। देन ऐसे ही ब्रेथ कितना होगा, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइडल वाटर टैंक आपको पूरा लिखना है बेटे इसको, 5 मीटर। देन हाइट ऑब्लिक डेप्थ जो आप जनरली क्यूबॉइडल टैंक देखते हैं अपने घर में, जो वाटर स्टोरेज टैंक होता है वो जनरली कैसा होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई एंड गहराई होती है, जिसको अपन अगर टैंक के अंदर खड़े होकर के अगर अपन मेजर करेंगे तो वो हाइट कहलाएगी, बट टैंक के बाहर से अगर अपन मेजर करते हैं तो वो डेप्थ कहलाती है। सो डेप्थ कितना दे रखा है बेटे, 4.5 मीटर। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ, so the volume of cuboidal tank का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, L into B into H यूनिट क्यूब क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है जो भी यूनिट होगी अपन लिख दीजिए, तो 6 into 5 into 4.5 मीटर क्यूब। देखिए यहां पर क्या हो गया कि ऑल 3 डायमेंशंस आर इन मीटर। अब देखिए इसको 6 5 30, सो 30 into 4.5 मीटर क्यूब। अब देखिए यहां से पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो आ जाएगा नीचे, जीरो से ये जीरो कट गया, तो 45 त्रिज्या कितना होगा, 135 मीटर क्यूब। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, क्यूबॉइडल टैंक का वॉल्यूम कितना है, 135 मीटर क्यूब। नाउ हमें क्या दे रखा है कि अगर 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, अगर आपका वाटर टैंक जो है अगर उसकी लेंथ 1 मीटर होती, ब्रेथ 1 मीटर होती, हाइट अगर 1 मीटर होती, तो उसमें 1000 लीटर पानी आता। तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, नाउ वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, implies that volume of 135 meter cube will be equals to 1 meter cube किसके इक्वल है, 1000 लीटर के, 135 मीटर क्यूब किसके बराबर होगा, 135 into 1000, so it will be equals to 135 into 1000
liter. So it will be equal to 135,000. So 1,35,000 liter will be contained in that cuboidal water tank. So hope this question is clear. फिर से देख लेते हैं। केवल सबसे पहले आपको LBH लिखना, फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक किसके बराबर होगा, LBH यूनिट क्यूब के। सिंपली 6 into 5 into 4.5 आपको मल्टीप्लाई करना है। सो इट विल बी इक्वल्स टू 135 मीटर क्यूब। फिर 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, ये यूनिट आपको याद रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यूज होगी ये। सो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। सो 135 मीटर क्यूब किसके इक्वल होगा, सिंपली अपन 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a cuboidal vessel is 10 meter long, 8 meter wide. How high oblique depth, how high or depth must it be made to hold 380 cubic meter of liquid? क्या करना है, एक आपको क्यूबॉइडल वेसल दे रखा है। फॉर एग्जांपल गिवन क्यूबॉइडल वेसल इज इन दिस फॉर्म, और आपको करना क्या है, इस जो क्यूबॉइडल जो वेसल है आपका, इस क्यूबॉइडल वेसल्स की लेंथ आपको 10 मीटर दे रखी है और ब्रेथ इसकी दे रखी है 8 मीटर। हाइट हमें फाइंड आउट करना है। इसकी हाइट या डेप्थ कितनी हो, ये डेप्थ कितनी हो, सो दैट कि इसके अंदर 380 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड कंटेंट हो जाए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, गिवन दैट क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ cuboidal vessel is equals to 10 meter, breadth of cuboidal vessel equals to 8 meter, and height oblique depth वो अपने को फाइंड आउट करना। ऑफ क्यूबॉइडल वेसल कितना दे रखा है, लेट अस सपोज वो h मीटर है। देन वॉल्यूम of cuboidal vessels will be equals to L into B into H unit cube। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वेसल्स कितना दे रखा है, आपने ऑलरेडी दे रखा है कि उसमें कितना क्यूबिक मीटर लिक्विड हो सकता है। लिक्विड कुछ भी हो सकता है, लिक्विड मींस वाटर हो सकता है, उसमें ऑयल हो सकता है, और भी जो लिक्विड है केमिकल हो सकता है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वेसल्स ये किसके बराबर होगा, 380 मीटर क्यूब विल बी इक्वल टू, इधर लेंथ की जगह अपन क्या पुट अप कर देंगे 10, हाइट ब्रेथ की जगह पुट अप कर देंगे 8 इनटू हाइट h ही रहेगा। ये हो गया आपका, ये भी आपका देखिए मीटर इनटू मीटर, ये मीटर स्क्वायर, यहां से तो 2 तो कट जाएगा, तो यहां सिंपल क्या बचेगा, ये वाला यूनिट आपका कट गया। तो हाइट किसके बराबर होगी, हाइट विल बी इक्वल्स टू 380 मीटर डिवाइडेड बाय 10 into 8। अब देखिए यहां 0 से सिंपल ये 0 कट गया, तो 38 इज इक्वल्स टू 38 अपॉन 8 मीटर। इसको क्या करेंगे अपन, 38 को 8 से डिवाइड कर दे, तो 8 4 जा 32, कितना बचा आपका 6 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 हो गया 6, देखो 8 7 जा 56, 4 बचा, पॉइंट लगा रखा 0, 8 5 जा 14, so 4.75 मीटर will be the depth of such cuboidal vessels। तो हमने क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबॉइडल वेसल्स होगा वो किसके बराबर होगा, LBH यूनिट क्यूब के। इसमें देखो अपने को L गिवन है, B गिवन है, H अपने को फाइंड आउट करना है। इधर अपन 380 मीटर क्यूब लिखेंगे क्योंकि ये अपना वॉल्यूम दे रखा है, तो यहां से H की वैल्यू आ जाएगी, ये दोनों जो क्वांटिटी है दैट इज L into B, इसको हम डिवाइड कर देंगे 380 से, तो आपका H will be calculated। So the question is very simple, let us see the next question।
Next question is find the cost of digging a cuboidal pit 8 meter long, 6 meter broad and 3 meter deep at the rate of 30 रुपीस पर मीटर। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, एक क्यूबॉइडल पिट अपने को क्या करना है, डिग करना है। एक क्यूबॉइडल शेप का हमें गड्ढा खोदना है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है पिट की, पिट में जो एक गड्ढा जिसको बोलते हैं 8 मीटर है, लॉन्ग है 6 मीटर, 6 मीटर ब्रेथ का है और 3 मीटर डेप्थ का है। लेट अस सपोज जैसे अपन जो जनरली घर में वाटर स्टोरेज जो टैंक है वो मान लीजिए कि एक क्यूबॉइडल पिट है, ऐसा टैंक है, पिट है जिसको हम गड्ढा बोलते हैं जनरली पिट को, उसको एलपीएच ऐसा चाहिए और पर मीटर क्यूब की जो डिगिंग कॉस्ट है 30 रुपीज है। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, सबसे पहले अपन वॉल्यूम निकालेंगे इस पिट का और वो वॉल्यूम जो मीटर क्यूब में आएगा उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि टोटल कॉस्ट आ जाएगी। So what will be the solution? Let given क्या है बेटे, given that क्या दे रखा आपको, सबसे पहले L is given 8 meter, breadth is given 6 meter and height is given equals to 3 meter. Now volume of cuboidal pit, क्यूबॉइडल पिट कितना होगा, L into B into H unit cube, ये है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट विल बी इक्वल्स टू 8 into 6 into 3। सो 8 6 48 into 3 मीटर क्यूब। So 8 3 24 का 4 carry 2, 4 3 12 into 14, 144 meter cube. So what is the volume of that cuboidal pit? 144 meter cube. Now cost of 1 meter cube is, now since cost of the digging a cuboidal pit 1 meter cube, the cost of digging a cuboidal pit of 1 meter cube is equals to rupees 30। देखो 1 मीटर क्यूब की कॉस्ट कितना है, 30 रुपीस। सो द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ ए क्यूबॉइडल पिट ऑफ कितने मीटर क्यूब का पिट है, 144। तो 144 मीटर क्यूब पिट का डिगिंग कॉस्ट कितना होगा, रुपीस 30 into 144। किससे मल्टीप्लाई करना आपको, 144 को 30 से। तो सिंपली अपन क्या करेंगे, 144 into 30, सिंपल कैसे मल्टीप्लाई करते, 3 से मल्टीप्लाई करके 0 पुट अप कर दे। तो 3 4 12 का 2 कैरी 1, 3 4 12 and 1, 13 का 3 कैरी 1, 3 and 1 4। तो कितना आया आपका, रुपीस, it will be equals to rupees 4320। 4320 will be the cost of digging of a such cuboidal pit. So that's very simple question. Let us see the next question. Next question is the capacity of a cuboidal tank is 50,000 liter ऑफ वाटर। एक कोई क्यूबॉइडल टैंक है जिसके अंदर 50,000 लीटर पानी भरा हुआ है। अब देखो 50,000 लीटर पानी को अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जानते हैं व्हाट वी नो, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो मैं लीटर को सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करूंगा, मीटर क्यूब में। So the volume of cuboidal tank is equals to कितना देने का, 50,000 लीटर। अब देखिए 1000 लीटर किसके बराबर होता है, 1 मीटर क्यूब के। तो अगर मैं इसको
50,000 को 1000 लीटर से अगर मैं ये भी लीटर है ये भी लीटर है मैं कन्वर्ट कर देता हूं तो सिंपल किसके बराबर आएगा ये 50 मीटर क्यूब हो जाएगा। व्हाट विल बी दैट दिस इज 50 मीटर क्यूब। तो एक प्रकार से जो क्यूबॉइडल टैंक है उसका वॉल्यूम कितना हो गया मीटर क्यूब में 50 मीटर क्यूब हो गया। क्यों? क्योंकि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है 1000 लीटर। तो अगर उल्टा दे रखा होता है कि लेट अस सपोज एक टैंक का वॉल्यूम 50 मीटर क्यूब है और उसको लीटर में कन्वर्ट करना तो हम कैसे करते हैं 50 को मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से तो 50,000 हो जाता। आप देखिए तो सिंपली हमने क्या कर दिया कि जो क्यूबॉइडल टैंक का जो कैपेसिटी था या वॉल्यूम था उसको हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया दैट इज 50 मीटर क्यूब। अब ये क्या कह रहा है फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर रेस्पेक्टिवली कितनी दे रखी है 2.5 एंड 10 मीटर। अपने को उसकी ब्रेथ निकालनी है जबकि लेंथ अपने को गिवन है डेप्थ भी गिवन है। सो नेक्स्ट क्या निकालना अपने को देखो सबसे पहले गिवन दैट क्या गिवन है लेंथ इज गिवन इक्वल्स टू 2.5 मीटर ब्रेथ जो है वो अपने को फाइंड आउट करना है और डेप्थ जो दे रखा दैट इज डेप्थ ऑब्लिक हाइट जो है वो कितना है 10 मीटर। सो अपन क्या लिख देंगे implies that now वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक किसके बराबर होता है L into B into H यूनिट क्यूब के। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक तो कितना है 50,000 मीटर क्यूब है 50 मीटर क्यूब है। यहां पर लेंथ कितनी दे रखी है लेंथ दे रखी है अपने को 2.5 ब्रेथ अपने को फाइंड आउट करनी जिसको ब्रेथ ही रखा हाइट कितनी दे रखी है 10 ठीक है। सो दिस इज मीटर। नाउ इट विल बी इक्वल्स टू देखो ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में 1 मीटर से ये कट गया 1 मीटर बचा यहाँ पे। अब देखो ब्रेथ किसके बराबर हो जाएगा ब्रेथ विल बी इक्वल्स टू 50 मीटर डिवाइडेड बाय कितना था 2.5 into 10। सो यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट गया तो ये हो गया 5 upon 2.5 मीटर दैट इज इक्वल्स टू 2 मीटर। So the breadth of such cuboidal tank will be equals to 2 meter. Yes, the next question is question number 6. Read the question carefully. Question is that a village having a population of 4,000 थोड़ा सा रुकना requires 150 liter of water per day per head. It has a tank measuring 20 meter into 15 meter into 6 meter. For how many days will the water of this tank last? क्वेश्चन का क्या वेरी सिंपल क्वेश्चन है। एक विलेज है उसका पॉपुलेशन है आपका 4,000 पीपल। क्वेश्चन को धीरे से इसलिए मैंने कहा कि यहाँ कॉमा है आप क्वेश्चन को धीरे से पढ़ें। एक विलेज है उसका पॉपुलेशन 4,000 पीपल है। 4,000 people means ladies and gents whatever you can say बच्चे भी हो सकते हैं 4,000 लोग हैं and require 150 liter of water per day per head। एक व्यक्ति को एक दिन में 150 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। एक दिन की बात कर रहे हैं ना क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि द पॉपुलेशन ऑफ विलेज the population of a village किसके बराबर है 4,000 ठीक है। one head one day require one day require equals to 150 लीटर क्या वाटर। एक व्यक्ति को एक दिन में कितना पानी चाहिए 150
50 लीटर। सो द वॉल्यूम ऑफ, इसका मतलब द वॉल्यूम ऑफ water required per day will be equals to 4000 into 150। सो कितना हो जाएगा ये 15 4 जा 60 एंड 60 के बाद अपन कितना लगाएंगे 40। सो 1 2 3 4, ये 40, ये कितना हो गया, इतना लीटर पानी पर डे चाहिए, इतना लीटर पानी पर डे चाहिए। यहां तक समझ में आया आपको कि एक व्यक्ति को 150 लीटर पानी पर डे चाहिए और उस गांव की पॉपुलेशन कितनी 4000, तो एक दिन में 4000 लोग मिलकर के इतना लीटर पानी खर्च करेंगे। अब अपने को क्या दे रखा है, ये एक दिन का पानी, ठीक है। अब अपने को दे रखा है कि टैंक की जो LBH है वो 20 मीटर है, 15 मीटर है, 6 मीटर है। तो यहां लिखेंगे हियर अगेन अपने को क्या गिवन है, लेंथ इज इक्वल्स टू 20 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 15 मीटर एंड हाइट इज इक्वल्स टू 6 मीटर। किसका है, जो वाटर टैंक का है। Implies that volume of tank will be equals to 20 into 15 into 6 meter cube. So it will be देखो 15 6 जा 90, so 20 into 90 meter cube, that 9 2 जा 18, so 1800 meter cube। अब यहां देखिए कि जो टैंक है उसकी कैपेसिटी कितनी है, इतना कैपेसिटी है 1800 मीटर क्यूब की कैपेसिटी है। और 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर पानी होता है, तो अपन ने वाटर टैंक का जो वॉल्यूम है वो निकाला है 1800 मीटर क्यूब है। और 1 मीटर क्यूब वी नो दैट 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1000 लीटर की। तो एक तरफ मैं कह रहा हूं कि जो वाटर टैंक है उस गांव में जो पानी सप्लाई कर रहा है उसका वॉल्यूम है 1800 मीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब में कितना पानी होता है 1000 लीटर। इसका मतलब वो गांव में जो टैंक बना रखा है उसमें पानी कितना है, implies that 1800 meter cube will be equals to 1800 into 1000, so it will be equals to 180000 लीटर। टैंक में पानी कितना है, इतना लीटर है। और एक दिन में गांव वाले कितना पानी खर्च कर रहे हैं, इतना पानी, दैट इज 60 दिस इज इक्वल्स टू देखो यूनिट 10 100 1000 10,000 एंड लेक, ये 6 लेक लीटर पानी। और टोटल पानी कितना है टैंक में 18 लेक लीटर। अब देखो एक दिन में 6 लेक लीटर पानी एक्सपेंडिचर हो रहा है और टैंक में पानी कितना है 18 लेक है। तो हाउ मेनी डेज इट विल बी अवेलेबल, जो यहां पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट का मतलब आपको वर्ड निकालना है कि अंतिम क्या है कि उस टैंक में जो पानी भरा हुआ है वो लास्ट में कितने दिन तक चलेगा, दैट इज सो number of days will be equals to volume of tank upon volume of water required per day per head। कितना हो गया देखो, वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना था आपका 18 लेक, कितना है 18 लेक और एक दिन में कितना खर्च हो रहा है 6 लेक। तो यहां सिंपल क्या हो गया बेटे, ये 50 से 50 कट गया और 6 3 जा 18 हो गया। इसका मतलब उस टैंक में जो पानी है वो कितने दिन तक लास्ट रहेगा, मतलब 3 दिन तक उस विलेज के लोग उस पानी को
यूटिलाइज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फिर से बता देता हूं आपको क्या करना है। सबसे पहले कि इतनी पॉपुलेशन है 4000, एक व्यक्ति एक दिन में कितना पानी खर्च करता है 150, तो एक दिन में वाटर कितना रिक्वायर्ड होगा 4000 पीपल इनटू 150, तो ये आपका 6 लाख वाटर हो गया। इतना पानी रोज का खर्च करना है। टैंक में पानी कितना भरा हुआ आपने नहीं पता है, तो एलबीएच दे रखा, वहां से अपन क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाल लेंगे, L into V into H, तो ये 1800 मीटर क्यूब आया। 1 मीटर क्यूब में कितना पानी होता है 1000 लीटर, तो 1800 मीटर क्यूब को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 लाख लीटर आ जाएगा। मतलब उस विलेज में जो पानी का टैंक बना हुआ है उसकी कैपेसिटी है 18 लाख लीटर की। अब पर डे रिक्वायरमेंट है, गांव के सारे लोग मिल करके कितना पानी खर्च कर देते हैं 6 लाख लीटर पानी पर डे, और टैंक में पानी है 18 लाख, तो कितने दिन तक टैंक का पानी यूटिलाइज होगा, टैंक का वॉल्यूम अपॉन पर डे रिक्वायर्ड वाटर। पर डे रिक्वायर्ड वाटर कितना है 6 लाख, तो 18 लाख अपॉन 6 लाख विल बी इक्वल टू 3। सो जो टैंक की जो कैपेसिटी है उसमें जितना पानी है और गांव वालों को जितनी रिक्वायरमेंट है 3 दिन तक उस टैंक का पानी they can utilize। after 3 days tank water will be finished। so अपना क्वेश्चन भी फिनिश है। let us see the next question। next question है a godown measures 40 meter 25 meter into 15 meter, ये LBH है। जब ये इस तरीके से लिखा हुआ तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये आपका हाइट है। एक गोडाउन है जिसका डायमेंशंस ये, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग इतना मीटर इतना मीटर इतना मीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गोडाउन है जिसका आपको डायमेंशन दे रखी है कि गोडाउन की लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, हाइट कितनी है, उसमें ऐसे कैरेट्स लिख रहे हैं, वुडन क्रेट्स रख रहे हैं। एक वुडन क्रेट जो भी बॉक्स है क्यूबोइडल शेप के जिसकी एलबीएच कितनी है, तो उस गोडाउन में अपन ऐसे कितने वुडन क्रेट्स रख सकते हैं जिनकी एलबीएच कितनी है। तो सिंपल अपन क्या करेंगे, देखो नंबर ऑफ, बहुत सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन, नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स, नंबर ऑफ wooden crates will be equals to, देखो volume of go down upon volume of one wooden crates। देखो जितना गोडाउन का वॉल्यूम है उसको मैं किससे डिवाइड करूंगा, एक वुडन क्रेट्स के वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन कितना LBH, तो 40 मीटर इनटू 25 मीटर इनटू 15 मीटर होल अपॉन 1.5 मीटर इनटू 1.25 मीटर इनटू 0.5 मीटर। तो सिंपली देखिए मीटर से तो सब मीटर कैंसिल हो गया। सिंपली देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन देखिए, ऊपर क्या बचा न्यूमरेटर में 40 into 25 into 15 होल अपॉन 1.5 into 1.25 into 0.5। अब देखिए यहां से क्या करेंगे कि नीचे से ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा, 1 के बाद ये पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो और आ जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो, मतलब आपका 10,000 हो गया। अब ये 15 से सीधा 15 कैंसिल है और ये 5 से 25 5 बार कैंसिल है, और इस 5 से ये जो 125 है वो कितने बार कैंसिल हो जाएगा 25 बार। अब देखो और इस 25 से मैं क्या करूंगा, इस 10,000 को डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 400 हो गया। ओके, तो न्यूमरेटर की सारी डिजिट कट गई, बचा क्या आपको
सिंपल बचा देखो 40 into 400. So number of wooden crates will be 40 into 400. That is 4 4 the 16,000 crates उसके अंदर we can put. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना आपको, वॉल्यूम ऑफ क्या गोडाउन निकालना और वॉल्यूम ऑफ एक वुडन क्रेट्स निकालना, ठीक है। दोनों को आपस में डिवाइड कर दे कि गोडाउन का जितना वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन वुडन क्रेट्स, तो टोटल नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स आ जाएंगे। दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो पॉज द वीडियो, नोट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है a solid cube of size, देखिए यहाँ क्यूब से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। solid cube of size 12 centimeter is cut into 8 cube of equal volume। एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है, इसको क्या कर रहे हैं, कट इनटू 8 cube of equal volume। what will be the side of the new cube? also find the ratio between their surface area। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से सुने। एक क्यूब दे रखा है सिंपल, उसकी साइड है 12 सेंटीमीटर, तो साइड ऑफ a cube is equals to 12 centimeter, implies that volume of a cube, volume of cube कितना हो जाएगा, साइड क्यूब का मतलब 12 into 12 into 12 सेंटीमीटर। ओके, अब इतने वॉल्यूम वाले क्यूब को क्या कर दिया, a solid cube of 12 cm cut into 8 cube of equal volume। इक्वल वॉल्यूम का मतलब क्या कर दिया, ये जो वॉल्यूम आ रहा है इसके कितने पार्ट कर दिए, 8 पार्ट कर दिए। तो अपन क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ a small cube, जो ऐसे टुकड़े करने के बाद स्मॉल जो क्यूब आएगा उसका वॉल्यूम कितना होगा, टोटल वॉल्यूम का मतलब ये 8 हो जाएगा। तो 12 into 12 into 12 डिवाइडेड बाय 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 2 6 जा 12, तो 12 into 6 into 3 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल क्यूब। अब स्मॉल क्यूब की साइड निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, इसका अपने को क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको देखिए 12 को लिखते हैं अपन 6, इसको लिख देते हैं 2 into 3, तो 4 3 जा 12, और इस 6 को भी लिख देते हैं 2 into 3 into 3। अब देखिए ये कितना हो गया, 2 क्यूब into 3 क्यूब, ये किसका वॉल्यूम आया, स्मॉल वॉल्यूम क्यूब का, ठीक है। सो साइड ऑफ स्मॉल क्यूब will be equals to cube root of volume। क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम कितना था, देखिए क्यूब रूट, ये अपन इसका क्यूब रूट निकाल, 2 का क्यूब into 3 का क्यूब सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, क्यूब रूट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 into 3 दैट इज 6 सेंटीमीटर साइड आ जाएगा। क्यूब रूट को देखो, nth रूट बताया था मैंने, किसी भी नंबर x का nth रूट निकालने के लिए अपन n निकालते हैं, तो क्यूब रूट का मतलब यहाँ 3 करेंगे तो होल पावर क्या होगा 1/3, तो यहाँ 2 into 3 की होल पावर 3 से ये कट जाएगा, कैसे ये भी देख लीजिए, 2 की पावर 3 into 3 की पावर 3, क्यूब रूट के अंदर 3 लिखेंगे तो ये क्या होगा, into 3 की होल पावर 3 तो अंदर था, और into 1/3 बाहर, तो 3 से 3 कैंसिल, दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो एक छोटे क्यूब की जो साइड है वो कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। आप देखो जो बड़ा क्यूब था उसकी साइड कितनी थी, 12 सेंटीमीटर। देखो एक क्वेश्चन तो यहाँ खत्म हो गया कि जो बड़ा क्यूब था
उसका हमने क्या कर दिया, 1/8 वॉल्यूम वाला क्यूब निकाला और उसकी साइड आ गई आपकी 6 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन दैट सरफेस एरिया। तो आप देखो, सबसे पहले तो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब क्या होता है, 6 into साइड स्क्वायर, 6 into साइड स्क्वायर। क्योंकि किसी भी क्यूब में क्या होती है, ऑल डायमेंशंस इक्वल होती है और 6 सरफेस है तो एक सरफेस का एरिया बाकी सब सरफेस के, इसलिए 6 into साइड स्क्वायर होता है। अब देखो रेशियो ऑफ बिग क्यूब एंड स्मॉल क्यूब, तो यहां क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ बिग साइज क्यूब एंड स्मॉल साइज क्यूब। आप देखो जो बिग साइज वाला क्यूब था उसका सरफेस एरिया कितना होगा, 6 into साइड, तो 6 into 12 into 12। देखो जो बड़ा वाला क्यूब है उसकी हर साइड 12 सेंटीमीटर है, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, 6 into साइड का मतलब 6 into 12 into 12। ये किसका सरफेस एरिया हुआ, जो बड़ा वाला क्यूब है। और जो स्मॉल क्यूब है उसकी साइज कितनी है, 6, तो देखो 6 into 6 into 6, देखो 6 into साइड स्क्वायर, तो यहाँ 6 तो लिखूंगा लेकिन साइड भी 6 है, तो ये भी 6 है ये भी 6। अब देखो एक 6 से एक 6 कट गया, इस 6 से 6 2 12, इस 6 से ये 6 2 12, तो रेशियो कितना हो गया बेटे, 4:1। मतलब जो बड़ा वाला क्यूब है उसका सरफेस एरिया स्मॉल वाले से 4 टाइम्स होगा। तो हमने यहाँ लिखा है, देखो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बिग साइज क्यूब एंड स्मॉल साइज, इसको स्मॉल साइज इस टू बिग साइज में लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 6 into 6 into 6 डिवाइडेड बाय 6 into 12 into 12, तो 1:4 हो जाएगा। तो एग्जामिनर कैसे चेक करेगा, अकॉर्डिंग टू दिस। और लैंग्वेज में भी ध्यान रखना है कि आपको रेशियो किसका किसके साथ निकालना, देखिए यहाँ लिखा फाइंड द रेशियो ऑफ दैट सरफेस एरिया, का मतलब जिस ऑर्डर में दे रखा है, पहले बड़ा वाला क्यूब दे रखा है उसी को कट करके अपन स्मॉल क्यूब निकाल रहे हैं, तो बिग इज टू स्मॉल का आपको रेशियो फाइंड आउट करना, द बिग इज टू स्मॉल 4:1 है, स्मॉल इज टू बिग होगा तो 1:4 हो जाएगा। सो होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। लेट अस सी द लास्ट क्वेश्चन। Last question is a river 3 meter depth, 40 meter wide is flowing at the rate of 2 kilometer per hour। एक जो नदी है वो क्या कर रही है, वो नदी जो है आपकी जिसकी LPH इतना दे रखा है, वो क्या कर रही है, वो इतनी स्पीड से रेट ऑफ फ्लो जो है उसकी 2 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो 2 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, 2000 मीटर हो गया, आर का मतलब 60 मिनट हो एक आर में, तो अपन क्या करेंगे, रेट ऑफ फ्लो पर मिनट हो जाएगा उसका 2000/60। सो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो देखो डेप्थ ऑफ रिवर, सॉल्यूशन में सबसे पहले डेप्थ ऑफ रिवर, डेप्थ ऑफ रिवर कितना दे रखा है, 3 मीटर, एंड ब्रेथ ऑफ रिवर दे रखा है आपको, ब्रेथ ऑफ रिवर इज 40 मीटर, तो 40 मीटर उसकी ब्रेथ है, 3 मीटर उसकी डेप्थ है, और रेट ऑफ फ्लो क्या है, रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर मीन्स 2 into 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और एक आवर में मिनट कितने होंगे, 60 मिनट है, तो पर मिनट हो जाएगी, देखिए ये 1000/60, एक 0 से एक 0 कैंसिल, 2 3 जा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 100/3 मीटर पर मिनट।
कि वो जो उसका फ्लो है वो 100/3 मीटर पर मिनट हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, ये एक प्रकार से उसका क्या हो गया, आपके पास लेंथ आ गया। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू LBH। तो L कितना था आपका, देखिए L तो आया आपका 100/3 मीटर इनटू ब्रेथ कितना है उसका 40 मीटर है और डेप्थ कितना है उसका 3 मीटर। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो उसका ये हो गया आपका सीधा 4000 मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम आ गया। अगर मुझे इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो अपन क्या करेंगे कि इस स्पीड से बहने वाली नदी में इतनी डायमेंशंस में कितना पानी होगा, तो वैसे आंसर आपका यहीं तक है, लेकिन अपन आगे सोल्व कर सकते हैं इसको। सो 4000 मीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 4000 इनटू 1000 लीटर। तो ये हो जाएगा 4 के बाद टोटल कितने जीरो टिक जाएंगे, 60 लीटर। उस नदी में इतना पानी फ्लो हो रहा है इन लीटर में। So hope you like this video. Please like it, share it and subscribe. Thank you.